Viewers, good evening. Thank you for joining us. I want you to look at the screen carefully. A post will come up on the right-hand side. This is a post by a top opposition politician, Prakash Ambedkar. And read every word carefully. Let this thought sink in. He says, reservations in private sector. Yes, you read that right. And let me say it without any hesitation that this is the only thing that unites netas across the political spectrum. The lust for votes will kill talent in our country. The very proposal, the one on your screen, is a direct attack on the very idea that hard work, skill, ability should decide who gets the job. If reservations enter the private sector, viewers, the world around us will change. And change how? Practically painful. And every day you will see the changes. Now imagine, how do I put it? Imagine you are a young engineer. You studied day and night. You scored top marks. You cracked tough interviews. You deserve the job in a top software firm. But the seat goes to someone with lower marks and less experience. What happens? Your dream dies. The company gets a less meritorious employee. The product suffers. Customers suffer. India's tech edge, if you were to extend that argument, starts to crack. Let's now talk about hospitals. Think about it. A doctor is selected not because he is the best surgeon, but because of quota. Your father needs heart surgery, or anyone in the family needs a heart surgery, and the hand holding the scalpel is not the most skilled. Would you still feel safe? In airlines, if pilots are selected by quota instead of hours of flying experience, would you still board that plane or board it without fear? Let's think of the local bank branch. The loans will get approved by officers who may not understand the risk because merit was ignored. So your dream dies, the company gets a weaker employee, the product suffers, customers suffer. And that's the problem. So you can apply this in other sectors, in all walks of life, and you will know what I'm trying to say. It is a real problem, and this is something that no political party would oppose, even in principle. And that's the real worry. Indian youth will lose even more opportunities. The brightest minds will flee to America, Singapore, what have you, Dubai, where merit still matters. Brain drain, as they say, will turn into flood. Every day life will feel the pinch. Your new car software may glitch more often. The app you use for food delivery may fail during peak hours. The bridge built by quota selected engineer may have weak points. Quality will drop. Safety will drop. Only because the person with less marks was selected. Trust will drop, viewers. Forcing private companies to hire by quota is like forcing a cricket team to select players by their last name instead of, batting or bowling averages. That's the threat. So, without any delay, let me open this up. We have a brilliant panel. Ashwini Kumar Mishra, leader of the Congress Party. Dr. Rajkumar Rajan, national spokesperson of the Rashtriya Janata Dal. Manoj Yadav, national spokesperson of the Samajwadi Party. Vivek Srivastava needs no introduction. Anuradha Tiwari, spokesperson of the Reservation Hatao Andolan. Dr. Neha Das, back on the show, Youth for Equality. And Dr. Anand Ranganathan completes this panel. Vivek Srivastava, let me start by asking you, should jobs be decided by marks? MARX wala nahi sir, marks, MARKS. Or by something else? The voice
is not coming clearly, but anyhow, you see, when this country became independent and the reservation policy of the country was being debated upon, the communist parties debated upon it because in Marxism, only economic-based reforms, revolutions, and reservations are what we are taught. Because Marx based his entire premise on an economics theory. Marxism is an economics theory. But however, in India, after a lot of debate, deliberations, we came to the conclusion in India, caste struggle is class struggle. And you cannot remove the two. Secondly, SC/ST quota and the OBC quota are two different things, and they could be talked of differently, dealt with differently. They belong to two different streams. I believe that yes, there is also a lot of demand now that there should be a reservation in the private sector, apart from the government sector, because it is the private sector which is on the boom. And so if the government sector, I mean, ultimately the Dalits and the have-nots should have jobs. So if it was happening in the government sector, now most of the people feel that. So Vivek Srivastava, no, 1 minute, sir, 1 minute, 1 minute. Let me rephrase my question. Is there any sector that you think should not have reservation? Well, there are many. I think the armed forces is one of them. It's already there. So no. Now it is there, but people like Rahul Gandhi have demanded quota there also. I have his reaction. I can play it out if you don't remember. मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें आप चाहते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, कोटा नहीं होना चाहिए, मेरिट पे होनी चाहिए? आप कोटा को मेरिट से इक्वेट क्यों कर रहे हैं? क्या एक बच्चा, दलित बच्चा, अगर उसका एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में हो जाता है तो वो पढ़ाई करके पास नहीं होता क्या? बिल्कुल पढ़ाई करके पास हो सकता है, लेकिन अगर जिसको 100 में से 70 नंबर आए और किसी को 100 में से 50 आए, तो किसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? Only in the entrance exam, na? Once the entrance exam is done, he has to. But sir, Vivek Srivastava, 1 minute, Mr. Srivastava, 1 minute, sir. You are a well-read man. You are aware that there is the provision of quota in promotion also? Yes, I am aware. It's needed. उसका क्या justification है sir? वो justification ये है सर कि हम सवर्ण हैं और हम कई सेंचुरी से we are well off. जमीनें हैं, नौकरियां हैं, पैसा है. You may be well off, Mr. Srivastava. No, 1 minute. But there are other people who are not well off. Why should they suffer because of one Vivek Srivastava? No. Because you discriminated against these communities. I mean, the society. I get it. I get the drift. But tell me then, why are political parties not talking of reservation in election? Quota उसमें भी होना चाहिए. ये मैंने last week भी पूछा था. Dr. Rajan, I think he was on the show. हाँ, तो लोकसभा के अंदर आपकी इस शेड्यूल कास्ट की सीट रिजर्व्ड है ऑलरेडी. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नो रिजर्विंग सीट्स. वो तो बहुत आसान है. मैं ये बोल रहा हूं, आप जो इतना जस्टिस और इसके बारे में बात कर रहे हैं, अपलिफ्ट करने के लिए पीपल हु हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड, व्हाई कांट वी हैव और प्रपोज अ सिस्टम वेयर SC candidate can win election if he secures 1,000 votes. OBC can win election if the person secures 5,000 votes, and a general category candidate has to have at least 10-12,000 votes. आप बताइए ऐसा क्यों नहीं कर सकते? Let's start quota in election also. Why is quota in election? The popularity, you see, democracy is based on the popularity. It is not merit, but popularity is the right word for it. Okay? So, I mean, we are not equal. The SC, STs and us, we are not at an equal footing right now. नहीं वो तो पॉपुलैरिटी में तो, बट सर आप जैसे कह रहे हैं कि इतने सालों से डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, they were disadvantaged और उनके साथ गलत हुआ, तो ये तो अभी भी जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं वो तो गलत कर सकते हैं उनके साथ. दे होल्ड मोर स्वे इन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू यू, तो वो तो वैसे ही पॉपुलर मैंडेट जीत लेंगे. सो व्हाई आर यू नॉट अग्रीइंग टू दिस प्रपोजल? लेट्स हैव दिस. लेट द CPI, CPM start this. No, we believe that already the general category has benefited through the EWS schemes. I am talking about quota in election. Just that. No, what do you think? Election is already there. A women reservation bill है, हमने बोला है उसके अंदर भी quota होना चाहिए. I am talking about this. अगर total number of votes 8 लाख है, SC candidate, ST candidate 10,000 में विनर घोषित हो जाएंगे. इसमें क्या दिक्कत है? That doesn't make sense. Why? 2 SC candidates will fight. The better one will win. Okay, this doesn't make sense. Does this make sense? Vivek Srivastava has 70 out of 100.
Pranesh has 40 out of 100. विवेक श्रीवास्तव बाहर बैठ जाते हैं, Pranesh gets in. Make sense? सेंस बिकॉज प्रणेश के पेरेंट्स, प्रणेश के ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पास उतने साधन नहीं थे। चलिए अब मैं आपके लिए और आसान कर देता हूं। देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दिस विवेक श्रीवास्तव, आज आप बचेंगे नहीं। अब मुझे बताइए, प्रणेश के पेरेंट्स दोनों सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रणेश के पेरेंट्स भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे। आप बताइए। देखिए, यू आर बेसिकली कंपीटिंग इन योर ओन कोटा, यू आर कंपीटिंग इन योर ओन कैटेगरी, वेदर एससी और एसटी और ओबीसी, आप उसमें कर रहे हैं। ये मेरे पेट ओन में क्यों दर्द होगा? नो, व्हाट इज दिस ओन कैटेगरी? व्हाट आर यू इवन सेइंग? आपको हम हिंदूज का 10% जनरल कैटेगरी है, सिर्फ हिंदू आबादी का 10% जनरल कैटेगरी है, जिसको देखिए अगर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो फिर वहां पे ओबीसी में सारे मुस्लिम सारे वहां फंस जाओगे, बहुत बुरा फंसोगे, उसका कोई जवाब नहीं है विवेक श्रीवास्तव, ऐसे मत कीजिए आप। अभी लेट जस्ट कीप दिस टू मेरिट। आपने शुरू सही किया जो आप बोलना चाहते थे, बिकॉज दैट इज योर कंपल्शन, लेकिन देखिए आप एग्जाम्पल में फिर फंस रहे हैं। मनोज यादव जी, मनोज जी, अब जो लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी कोटा होना चाहिए, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल प्रणेश जी, ये दिन तो देखना ही था, ये दिन आना ही था। इस दिन पे तो समाजवादियों की पहले से भी चर्चा थी और अब स्पष्ट रूप से चर्चा खुल के सामने आ गई। आखिर प्राइवेट सेक्टर में क्यों होना चाहिए रिजर्वेशन? क्योंकि जब आरएसएस की विचारधारा की सरकार इस देश में आएगी तो सरकारी नौकरियों पे हड़ताल लग जाती है, और अगर होगी भी सरकारी भर्तियां तो उसमें बहुत सारे नए रास्ते खोल दिए जाते हैं। जैसे वो अपने ही कैटेगरी के नियम बना के उनकी भर्ती कर लेंगे, जनरल क्लास की, ओबीसी के नॉट फॉर सुटेबल अभ्यर्थी मिलना शुरू हो जाएंगे और उनकी तमाम सारी भर्तियों को रद्द कर दिया जाए। या एक शब्द बड़ा आसान है जो सबको समझ में आ जाएगा, आरक्षण की लूट कर लो या डकैती डाल लो। जैसे उत्तर प्रदेश में 68,000 शिक्षक भर्ती का हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती का हुआ, दरोगा भर्ती का हुआ, सिपाही भर्ती का, सब में बीजेपी आरएसएस की मानसिकता ने लूट लिया। इसलिए अब प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां ज्यादा हैं। इसलिए मुझे लगता है कि प्रकाश अंबेडकर जी ने यह बात बिल्कुल सही समय पे उठाई है। उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, अन्य राज्यों का भी चुनाव है, और इस वक्त तो वो कहते हैं जब बिल्ली फंस जाती है ना, उसका सर उसमें क्या बोलते हैं, पतीले में या लोटे में, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। यही कंडीशन इस वक्त, बिल्ली फंस गई लोटे में, उसका सर फंस गया। तो इसमें बिल्ली कौन है? गवर्नमेंट की है, मनोज यादव जी, इसमें बिल्ली कौन है? कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। बिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट है। नहीं तो बिल्ली अभी कहां फंसी है? ये तो प्राइवेट नहीं, कोटा इन प्राइवेट सेक्टर डिमांड तो पुराना है। उस समय ये कुत्ता और बिल्ली कौन थे? उन्होंने क्यों नहीं किया? वो तो सोशल जस्टिस के चैंपियंस कहते हैं अपने आप को। आप लोग प्रकाश अंबेडकर का वेट कर रहे थे, आपने लास्ट मैनिफेस्टो में क्यों नहीं बोला अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम प्राइवेट सेक्टर में लाएंगे कोटा? आपने क्यों नहीं लिखा ये? अरे आप आने दीजिए, क्यों आप परेशान हैं? बहुत कुछ करेंगे। प्रमोशन में रिजर्वेशन देने तो कहा है ना, किस तरह के हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन देंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी जितना हो सकता है उसका भी प्रयास किया जाएगा, कितना और इसलिए किया जाएगा। चलिए मनोज जी, मुझे यह बताइए जो मैं विवेक श्रीवास्तव से पूछ रहा था, क्या आप किसी ऐसे एयरक्राफ्ट को बोर्ड करेंगे जिसका पायलट ऐसे कोटे से गया हो? अरे आपने बड़ा उदाहरण दे दिया, मैं छोटा उदाहरण देता हूं। मेरे ऊपर बीती है। मेरा एक दांत खराब हो गया, बड़े सेकंड में सुना दूंगा। मेरे एक दांत में दर्द था, मैं एक डॉक्टर के पास गया, वो लेडी डॉक्टर थी, जनरल कैटेगरी थी, और उन्होंने बात करते करते, मेरा ट्रीटमेंट करते करते कहा, जब मैंने ये परिचय दिया कि मैं समाजवादी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं नेशनल, तो उन्होंने कहा मैं रिजर्वेशन के बहुत खिलाफ हूं और आज तक मैंने अपना कोई भी इलाज जो रिजर्व डॉक्टर बनते उनसे नहीं कराया। उसी दिन मेरा माथा ठनक गया था कि इस देश में कितनी घटिया मानसिकता है। मैं कहता हूं ट्रेन में 3 डिब्बे क्यों चलते हैं? स्लीपर, फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एसी रखता हूं, और एक जर्नल बोगी चलती है। काहे चला रहा भाई? बंद करो ना, सब एक जैसी ट्रेन होने। एक मिनट, इसका जवाब सुन लीजिए, भी भागिए मत। इस दांत में दर्द नहीं, आप कहीं दर्द इलाज आपका दांतों का नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम दूसरी है। मैं आपको बताता हूं, 3 डब्बे इसीलिए होते हैं क्योंकि आप अगर नेशनल स्पोक्स पर्सन है, आपकी जितनी क्या बोलते हैं उसको हैसियत है,
आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदिए और उसमें चलिए आप। अब आपने जो कपड़े पहने हैं तो उस हिसाब 3 लेयर क्यों पहना है आपने? कुर्ते के ऊपर वो जैकेट क्यों पहनी है? उसी से कुर्ते से ही हो जाता। तो अगर आप अब्सर्डिटी पे उतरेंगे फिर इसका कोई अंत नहीं है। मनोज भाई ऐसे मत कीजिए। समझ गया, मैं ये जो ट्रेन की बोगी, और मैं जो आपसे कह रहा हूं कि अगर पायलट डिसाइड होगा एयरक्राफ्ट का, वो फ्लाइंग आवर्स पे डिसाइड होना चाहिए या कोटे पे डिसाइड होना चाहिए? सीधा सवाल है। काहे के लिए आपने कह दिया? एक मिनट प्रणस जी, ये आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये टैलेंट को अप एंड डाउन नहीं करता है, अवसर देता है हमको। बिना टैलेंट के कौन आ जाएगा? मैं बता रहा हूं ना, बिना टैलेंट के कौन आ रहा है। मैं बता रहा हूं बिना टैलेंट के कौन आ रहा है। अगर किसी को 100 में से 80 नंबर है, वो नहीं आ पा रहा है और 40 वाला अंदर जा पा रहा है, तो ये जो 80 वाला है वो कहां जाएगा? समाजवादी पार्टी के पास आएगा, आपके पास आएगा, किसके पास जाएगा? पिछले 12 साल से आप देश के पिछड़े प्रधानमंत्री का अपमान। मैं तो 47 से जा रहा हूं। मुझे तो नहीं, पिछले 12 साल की बात नहीं है। मैं तो नेहरू जी का सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या कहा था नेहरू जी ने, कि कोटा होना ही नहीं चाहिए, इट किल्स मेरिट। ये तो पहले प्रधानमंत्री ने कह दिया था। तो उनका सम्मान है इस बात पे, क्योंकि मैं अब ये मानता हूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये रिस्क नहीं लेगी ऑफ सेइंग द राइट थिंग। सब ये विकसित भारत का नारा देंगे, लेकिन विकसित भारत बनेगा कैसे? थ्रू रिजर्वेशन एंड कोटा। अश्विनी जी, राहुल गांधी कह रहे थे कि आर्मी में भी चाहिए रिजर्वेशन। अब प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। Pradesh, good evening to you, fellow panelists and your viewers. Pradesh, you are talking about a reform in the way reservation is implemented right now, and your government representative is not here. So I don't think this debate is going to have a serious outcome, because BJP spokesperson should have been part of the debate. सर, Having said has the that, कांग्रेस पार्टी गिवन अप कि आप लोग भी कभी सत्ता में आएंगे, कि बीजेपी पे ही छोड़ दिया है? बीजेपी सारी पॉलिसी डिसाइड करेगी। वो नहीं आ रहे, इससे लोगों को भी समझ में आ रहा है कि बीजेपी डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट दिस। पर आप जब आए हैं तो आप तो बात कीजिए कि आपने छोड़ दिया, कि जैसे वो कहते हैं कि 20 साल तक ऑपोजिशन में रहने का प्लान है आपका। Let me finish my point and you will understand what point of view I'm making. I think you also have a lot of reservation about the reservation. If you're talking about certain reforms, the way it is implemented, that is something subjective, can be decided. But please understand, reservation is about inclusiveness. The very मूलभूत सिद्धांत of Hindustan is Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, which talks about inclusiveness. Inclusiveness in family is not possible without giving an opportunity to someone who has been deprived because of social condition, because of other sort of condition. Sir, so reservation what is sort not of about condition? No, 1 minute. Currently, what sort of conditions are we celebrating and cheering that is still depriving people? उनका जस्टिस कब होगा? 100 साल बाद? आज जिसको 80 नंबर मिलने के बाद भी एडमिशन नहीं मिल रहा, उसका जस्टिस, उसके लिए हम 100 साल बाद बात करेंगे। Pranesh, that is the question you should raise, that why there are not enough opportunities, why this government in last 12 years or probably previous government has How is not this created about enough one opportunities. government? This is about the mindset of all political parties. आप लोग सब बोल दीजिए कि मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मनोज यादव स्पोक्सपर्सन बने, अच्छा वो बोलते हैं इसीलिए बने कि उनको बोला कि नहीं मनोज यादव जी, आपका नाम के आगे यादव है, आप आगे बढ़िए। Pranesh, बोलिए सर। that is the question you should be asking in every debate. तब तो आप दिन भर बैठ के मोदी की तारीफ करते हो। आप पूछिए ना मोदी से अरे तो कि 2 करोड़ this नौकरियां is क्यों not create just नहीं? about Modi. This is about all the other parties. And if Modi can't, why can't the Congress do this? Why can't you follow what Nehru said? दिन भर बैठ के आप मोदी सरकार की आप एक काम कीजिए अश्विनी जी, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? बस सोशल मीडिया पे ट्वीट कीजिए आप। यू डोंट वांट टू टेक अ स्टैंड ऑन एनी टॉपिक। आपके तो जो सबसे बड़े नेता हैं जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लिख दिया था कोटा किल्स मेरिट। यू आर स्टिल ब्लेमिंग मोदी। वो तो वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, आप लोग क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर यू बिट्रेइंग नेहरू? blaming
you that you are not picking up the right topic. You are not criticizing the government. I am blaming you. You should criticize government for not creating opportunities for the youth. ये रिजर्वेशन की बात दिस इज नॉट अबाउट अपॉर्चुनिटीज. अश्विनी जी आप देखिए दूसरे टैंजेंट पे चले गए. अब आप आई कांट सर सॉरी अश्विनी जी ऐसे मत कीजिए प्लीज. डोंट डू दिस. डोंट डिरेल अ डिबेट. Dr. Rajan, I'll come back to you. Let me get the other doctor first. Dr. Ranganathan, of what you've heard so far and the debate around quota, मनोज यादव जी ने भी 2-3 एग्जाम्पल दिए, मैंने भी दिए, विवेक श्रीवास्तव को सुना आपने. Good evening, Pranesh. Let me start by quoting someone. Quote, I dislike any kind of reservation, more particularly in service. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. I want my country to be a first-class country in everything. The moment we encourage the second rate, we are lost. If we go in for reservations on a communal or caste basis, we swamp the bright and able people and remain second or third rate. The only real way to help a backward group is to give opportunities for good education. Help should be given on economic considerations and not on caste, unquote. Who said this? Jawaharlal Nehru on 27th June 1961. अब जो बाकी बचे कुछ पैनलिस्ट हैं भागने से पहले उनसे पूछ लेना whether they are critical of Nehru or not. But look, seriously, the question of reservations, Pranesh, can no longer be answered through lessons in history or hypocrisy, but only through hard solutions. And here are my 5 solutions. Number 1, reservations must be targeted and never blanket so that they cannot be turned into instruments of appeasement. Number 2, reservations must be time bound so that they cannot be used for endless political upmanship. Number 3, reservations must be one time, one family so that the most deserving cannot be crowded out by those already emancipated. Number 4, reservations must be realized through extra seats so that merit-based selection process cannot be compromised. And number 5, reservations, if and only if extended to the private sector, must never be forced but offered only through choice. And that is why I have always been against how every political party, including the BJP and the Congress, wants to implement private sector reservation. Let me explain just a minute. Look, the faster the depressed classes are emancipated, the sooner reservations will end, which is the ultimate goal not only of Dr. Ambedkar, but of everyone. If the reduction in merit, discrimination against general category, or loss of national fiscal resources caused by the policy of reservation is to be eliminated, I firmly believe in private enterprise, in the concept of the individual, in the state not controlling it, and in the concept of choice. So I believe that reservation in private sector must not be forced, but rather nudged if need be through incentives, exactly as the state provides incentives already to companies that do social good or that promote women in the workforce or that help employ state domicile candidates. This allows the private sector company to choose whether it wants reservation or not, just as the private sector company chooses whether to set up a factory in a state that offers a tax incentive or in one that does not. For example, the state gives free or subsidized land to private bodies to set up schools and hospitals in return for the schools and hospitals providing free education and treatment to the depressed classes. The private bodies have a choice either to accept it or to buy non-subsidized land. Many private enterprises choose not to accept the government incentives. BITS, for example, does not have reservations. Choice, not coercion, is the bedrock of economic and social progress. And our politicians are choosing the latter, Pranesh, and that is wrong. Anuradha ji. Good evening, everyone. First of all, Pranesh, I would like to thank you for raising this issue consistently. I'm sure you must be getting a lot of backlash, a lot of pressure कि आप इसके बारे में क्यों बात कर रहे हो. एक ट्वीट मैं अपना दिखाना चाहूंगी. 4 साल पहले मैंने ये ट्वीट लिखा था. सिंपल मेरा एक फोटो था 10th August 2022 को. One family, one reservation. अभी भी 4 साल पहले ये ट्वीट मैंने डाला. सिंपल फोटो. और अगर इसके कोई कमेंट जाकर पड़ेगा आप उसमें देखोगे लोग दिल्ली पुलिस को टैग कर रहे हैं. अरेस्ट हर अंडर SC/ST एक्ट. इमेजिन 4-5 साल पहले इस तरीके से बातें होती थी. तो थैंक्स अ लॉट कि आप मेन स्ट्रीम में इसको लेकर आए और हम इस पर डिबेट कर रहे हैं. नहीं ये तो थैंक्स तो आप बोल रही है, मुझे भी गाली दे रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे, बट दैट्स ओके. वो तो वैसे भी आए दिन होते रहते हैं. आई डोंट थिंक हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो कुछ ये सब प्रमोट करते हैं. बट मैं आपको, आपने SC/ST एक्ट की बात की. उस दिन अंबेडकर करेंसी नोट पे उनकी फोटो छपे, ये डिबेट कर रहा था मैं.
तो उसमें अगर प्रॉब्लम यह है कि अगर वो नोट फट गया, किसी के जेब में फट गया, तो उस पर भी SC/ST एक्ट लग जाएगा। गीला हो गया नोट तो SC/ST एक्ट लग जाएगा। तो ये जो माइंडलेस चीजें जो लोग बोलते हैं, लिखते हैं, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। मनोज यादव जी यहाँ पर बैठे हुए, आई थिंक इन पे SC/ST एक्ट लगा हुआ है। आई थिंक ये वही है या कोई और है SP के, आई थिंक इन्हीं पर लगा हुआ है। नहीं, ये वही है, वही है, ये वही है ना? ओके। और विवेक वो कुछ और ओके, वही है, ठीक है। और विवेक श्रीवास्तव जी को मैं ये बोलना चाहूंगी, उन्होंने अभी बोला कि सारे अपर कास्ट के पास बहुत प्रिविलेजेस हैं। आज की न्यूज है, 2 ब्राह्मण प्रयागराज में उनकी डेथ हो गई है सेप्टिक टैंक क्लीन करते हुए। तो ये किस प्रिविलेज की बात कर रहे हैं? इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये किस गांव में गए, इनके पास क्या डेटा है, क्या केस स्टडी है? और जो लोग रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर की बातें कर रहे हैं, वो रिजर्वेशन टैक्सेस में क्यों नहीं चाह रहे? अभी जनरल कैटेगरी मेजॉरिटी टैक्सेस पे कर रहा है, तो आप लोग मेजॉरिटी टैक्सेस क्यों नहीं आप डिमांड कर रहे कि रिजर्वेशन टैक्स में भी लेकर आइए? वहां पर तो बिल्कुल आप लोग चुप है। सारे हमारे IIT IIM खराब कर दिए हैं, PSU सारे हमारे खराब हो चुके हैं, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस सब सारे बेकार हो गए। टॉप 100 यूनिवर्सिटी में एक इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं आती, एक IIT हमारा नहीं आता, ओनली बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। अब ये क्यों है इशू? क्योंकि हम सबको पता है ग्रीन कार्ड है क्यों पॉपुलर है, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट है, आपको सिटीजनशिप उससे मिल जाएगा, फैमिली मेंबर्स को आप स्पॉन्सर कर सकते हो, कहीं पर भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हो पूरे कंट्री में। सेम विद कास्ट सर्टिफिकेट है, एक कास्ट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, आपको हजारों बेनिफिट मिलने वाले हैं, कट ऑफ में, एडमिशन में, फीस में, स्कॉलरशिप में। तो हर किसी को कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, हर किसी को रिजर्वेशन चाहिए, इसलिए ये लोग यहाँ पर आके बैठ के वही बातें कर रहे हैं, वही डिमांड कर रहे हैं। अगर कंट्री के बारे में सोचते तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और उन सब की डिमांड कर रहे होते, लेकिन सबको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। मनोज यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। देखिए, सबसे पहले तो जो बात कही गई SC/ST मेरे ऊपर लगा, उस बुजुर्ग महिला ने मेरे ऊपर SC/ST नहीं लगाया था। आपके जो लोकप्रिय जो आपके नेता है ना, योगी आदित्यनाथ बिष्ट जी, उन्होंने मेरे ऊपर फर्जी लगाया था। वो तो कोर्ट में जाते ही गिर गया, औंधे मुंह गिर गया। उस हमारी माता समान महिला ने कहा ना, मैं तो मनोज यादव को पहचानता ही नहीं। उस माता समान महिला ने कहा। मैंने इस बात को बार बार मीडिया में नहीं कहा, जानते क्यों? योगी आदित्यनाथ जी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मुझसे सही जवाब और सवाल कर सके, भले उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री। लेकिन महत्वपूर्ण बात अपनी प्रणेश जी कहने के लिए मैं उंगली उठा रहा था। देखिए, एक बात बताएं, जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदुस्तान में आरक्षण रहेगा। आप चाहे बिपीरी बजाओ, चाहे बांसुरी बजाओ, चाहे ढोल नगाड़ा बजाओ, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं। रंगनाथन जी के लिए स्पेशल मैंने बोला है, जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदुस्तान में पिछड़े दलित अकिलियत का आरक्षण रहेगा। तो ये तो सर मैं भी पिछले 2 हफ्ते से यही बोल रहा हूं कि कभी नहीं जाने वाला है रिजर्वेशन, क्योंकि जब तक ये आपका जो स्लोगन है ना, सूरज चांद नहीं है, जब तक इसको थोड़ा रामदास आठवले की तरह, वो भी कुछ से कुछ लिख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, वो उनके हिसाब से कहें तो जब तक ये वोट बैंक की राजनीति रहेगी तब तक ये कोटा चलेगा। बस ये वही है, वोट के लिए ही है, कोई सोशल जस्टिस नहीं है। और डॉक्टर का नाम लिया आपने, वो उन्होंने भी उंगली उठा ली। डॉक्टर नेहा दास, आई एम कमिंग टू यू प्लीज। Yeah, Pranesh, I think there's a lot of. I think Dr. Ranganathan is making one point, and then you can start. Yeah. हाँ, नहीं, मैं यही कह रहा था, मैं मनोज यादव जी की बात से एकदम सहमत हूं। उन्होंने एकदम ठीक कहा है, क्योंकि ये सारे पॉलिटिशियंस, किसी की हिम्मत नहीं है डॉक्टर अंबेडकर को सुनने में, जो कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रिजर्वेशन चाहते थे। ये उनको वर्शिप करते हैं, फॉलो नहीं करते, इनकी हिम्मत नहीं है। इसलिए मनोज यादव कह रहे हैं जब तक सूरज चांद रहेगा रिजर्वेशन रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर नेवर सेड दिस। He wanted even political reservation for a limited period of time. He said that multiple times. The Chief Justice of India has said this multiple times. Prakash Ambedkar had said this on multiple times. लेकिन ये जो है ना, जो कह रहे हैं, can you believe it, मनोज यादव पता नहीं कहां से पढ़े, मुझे पता नहीं, शायद देश के बाहर से पढ़े हो, जहां से विवेक पढ़े हैं, चाइना से, कह रहे हैं कि reservation does not affect merit. ये आदमी मैं ये नहीं कह रहा कि I am against reservation, but to say it does not affect merit is कंप्लीट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आप पे भी डॉक्टर रंगनाथन, डोंट पुश दैट टू मच ऑन द शो, आप पे भी लगेगा SC/ST एक्ट। डॉक्टर नेहा दास। Yeah, thanks, Pranesh. I think there's a presumption or misunderstanding amongst people that without reservation, people cannot, SC/ST, OBC cannot gather representation. So let me just give you some data that will kind of clear everybody's doubt.
First thing first, I think even Vivek ji said that about the land holdings, right? So coming to the agricultural land holding, this government's data, which shows that 71.5% of the agricultural land is connection. Yeah, we are having a few issues in that line with Dr. Neha Das. We'll come back to her. Dr. Rajan, sir, you haven't spoken. Please go ahead. प्रणेश जी देखिए, मैं इतने गंभीर मुद्दे पर आपने अंततः मुझे मौका दिया, मैं धन्यवाद करता हूं आपका। प्रणेश जी, जो बहस और विमर्श आप चला रहे हैं, मुझे लगता है कि जितने पैनलिस्ट हैं जो रिजर्वेशन के खिलाफ में हैं, शायद ऐसा लगता है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का उन्हें ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान है भी तो वह अनभिज्ञता जाहिर करते हैं, और स्वार्थ इतना प्रबल है कि लोक कल्याणकारी राज्य का जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसको बहिष्कृत करना चाहते हैं। आखिर यह देश सबका है, सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जो देश में रहने वाले गरीब हैं उनकी भी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। नहीं तो डॉक्टर राजन देखिए, आपने फिर आप ये जो आप जो कह रहे हैं, एक मिनट सुनिए, आपने पहले ही गलत बोल दिया। यहां पैनल पे कोई रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। आप इकोनॉमिक कंसिडरेशन पे रिजर्वेशन दीजिए कि अगर अश्विनी मिश्रा जी के पास पैसे कम है तो इनको सपोर्ट मिलना चाहिए। वो क्यों नहीं दे रहे हैं आप? वो सोशल जस्टिस नहीं है क्या? हो जाएगा। जो मनसा पैनलिस्ट का दिखाई देता है, मंशा क्यों देख रहे हैं सर? मंशा तो दिखती नहीं है। जो कह रहे हैं उसके वो बात आपको समझ में नहीं आ रही है। आप मंशा देख रहे हैं लोगों की। मैंने आपसे पूछा था ना पिछले डिबेट में डॉक्टर राजन, कि आप बोलिए इलेक्शन में रिजर्वेशन लागू करना चाहिए कि अगर SC ST कैंडिडेट है वो 2000 में जीत जाएगा चुनाव, और OBC कैंडिडेट को 3000 लगेंगे वोट जीतने के लिए। आप लोग लगा दीजिए, सोशल जस्टिस करके देख लीजिए। जितने OBC नेता है ना, सबसे पहले वो अपोज करेंगे। द हुज हु ऑफ OBC नेता सबसे पहले वो अपोज करेंगे, नहीं हम भी 2000 में जीतना चाहते हैं। तो ये हाल है। इसीलिए दिस इज नॉट अबाउट सोशल जस्टिस। बोलिए सर। बोलने नहीं देंगे। नहीं बोलिए। अगर बोलने नहीं देंगे, सिर्फ आप ही बोलेंगे तो आप ही बोल लीजिए। नहीं, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। यह हिस्सेदारी और भागीदारी का मामला है, सम्मान की बात है। वर्षों से जो समाज के साथ, बहिष्कृत समाज के साथ हुआ है, उसके साथ जो व्यवहार किया गया है, आर्थिक असमानता जो जिस तरह से देश में हुई, तो डॉक्टर राजन अगर चलिए, मैं आपसे नहीं चलिए, आपके इस पॉइंट में मनोज यादव जी सहमति दिखा रहे थे, मुझे ये बताइए, तो फिर जो क्रीमी लेयर वाली बात है उस पर तो स्टैंड ले सकते ना आप। अगर किसी का परिवार, उसमें सारे लोग अच्छे जॉब्स में हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके बच्चों को मिलना चाहिए आरक्षण। नहीं, अभी कई पैनलिस्ट ने इस पर फोकस किया। ये बातें बोली जा रही थी कि भारत इसलिए कोई यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर नहीं है। तो जरा सोचिए, अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन जो है, सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए जो आरक्षण लागू हुआ है, अमेरिका दुनिया का नंबर 1 क्यों है? क्योंकि वो मेरिट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। वो इसीलिए नंबर 1 है क्योंकि वो मेरिट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसीलिए नंबर 1 है। डॉक्टर रंगनाथन। Thank you. You know, this is the reason why we are not going to get anywhere, because the people who are against and for are perpetually going to fight. As I've said, I've given a 5-point formula. Let me elaborate point number 4. It is so crucial because through that, if you implement it, there will be absolutely no acrimony. And here is what it is. Reservations must be through extra added seats so that they do not affect merit-based selection. If followed, this would remove any acrimony that the concept of reservations currently generates between community, between panelists. Merit stays untouched. The depressed continue to be emancipated. All that is required is a cutoff date at which the number of available seats is fixed. By first locking the number of pure merit seats at a cutoff date based on existing institutional capacity and then creating additional seats only for the reserved categories, the open category remains completely untouched by reservation.
No general category candidate loses a seat, no rank is displayed, and selection into the base seats continues strictly on mass or rank. This removes the zero-sum conflict that currently fuels resentment and bitterness between communities. The depressed classes still receive affirmative action and get emancipated, while the principle of merit is preserved in absolute terms for the original seats. Crucially, it ends the perception that one community's gain is another's loss. After all, discrimination is discrimination. There is no such thing as positive discrimination beyond its vogue or metaphorical. Dr. Neha, we had an issue in your line. Please go ahead. Yeah, sorry, actually I'm traveling, so I am taking the call from a hotel. One thing that I wanted to clarify is like the presumption that private sector reservation is needed. That is not needed because the data shows that SC, ST, OBC have enough representation across all the sectors. So I'll just give you the data and that will, you know, kind of clarify everybody's doubt. First thing, I told that agricultural land 71.5% is owned by SC, ST, OBC. Coming to the 6th economic census, which was done by the government, they had looked into agricultural establishments, handicraft establishments, women-owned establishments and non-agricultural establishments. All of them showed that SC, ST, OBC owned around 65% of these all sectors. Even coming to the private sector jobs, since we do not have any data on the private sector jobs, but we have data from the caste census which was done in Telangana and we have done in Bihar. That shows that around 67% in Telangana, the private sector jobs are held by SC, ST, OBC. Even in Bihar, 56% of the jobs are in the private sector is held by SC, ST, OBC. If we come to the public sector, around 65 to 75% of the jobs are held by SC, ST, OBC. In the Lok Sabha, around 70% of the representatives are coming from SC, ST, OBC and minorities. These all data are coming from the government sources itself. So this shows that SC, ST, OBC already have enough representation across the fields, including the private sector. It's not like, because nobody has done any study here. No, this is not about representation. This is about giving justice for years of discrimination. Uska hisab karenge by denying seat to merit. Dr. Ranganathan Boli. Yes, you know what I have said, the formula, just give me 30 seconds because it aligns reservation with institutional expansion rather than redistribution of a fixed pie. Exactly what our parliamentarians did when they refused to take 33% of the existing 543 Lok Sabha seats for women, which would have reduced their own numbers. Instead, they increased the number of Lok Sabha seats to 815 and then applied the reservation percentage to the new total. This left the original 543 seats untouched by reservation. So I ask a simple question to our politicians. If politicians can do it for their own domain, why can't the same principle be replicated everywhere? Especially in judiciary as well. Vivek Srivastava. Thank you for coming to me. 3 बार आप रंगनाथन जी की कथा में सुना चुके हैं. आप अंत में आप ही से शुरू किया था सर, आप ही से शुरू किया था. आपको एक बार मौका दे दिया. यू आर नॉट गुड इनफ. तो अब कितने बार आएंगे आपके पास? वो गुड इनफ की परिभाषा आप तो नहीं डिफाइन करेंगे ना कि मैं यहाँ पे तो मैं ही डिसाइड करूंगा टिल यू हैव कोटा. फिर कोटे के हिसाब से फिर मैं जज करूंगा. आप नहीं, जो व्यूअर्स हैं वो डिसाइड करेंगे. पहला क्वेश्चन मेरा अनुराधा तिवारी जी से है. आप आरक्षण के खिलाफ आपने मुहिम चलाई है. मैडम, आप एक तिवारी हैं और मैं कायस्थ श्रीवास्तव हूं. मेरी जाति का आदमी आप भी शंकराचार्य नहीं बन सकता. ना मनोज यादव की जाति का कोई भी व्यक्ति मंदिरों के अंदर पुजारी बन सकता है. पूरा आरक्षण एक जाति ने ले रखा है. हटाएंगे आप उसको? ये जो सबके खिलाफ हो रहा है, सेंचुरी से हो रहा है, आज भी हो रहा है. मैं 2 सवाल पूछूंगा. विवेक श्रीवास्तव शो से उठ के चले जाएंगे. ये जो मिसनोमर है, ये फॉल्स इक्विवेलेंस है. पहले अनुराधा जी आप जवाब दे दीजिए. डॉक्टर रंगनाथन, देन विल आई हैव अ क्वेश्चन. आई एम श्योर यू ऑल्सो हैव वन फॉर हिम. मेरा इनसे सीधा ये सवाल है, इनको मेरे बैकग्राउंड के बारे में क्या पता है? मेरे पापा ने क्या जॉब स्टार्ट किया, वो कहाँ से आए थे, मैंने कहाँ से पढ़ाई की है, इनको मेरे बैकग्राउंड के बारे में क्या नॉलेज है? ये सारा केस स्टडी अपने पास बना के कैसे बैठे हुए? टीना डाबी के साथ किस तरह का ऑपरेशन हुआ था? पॉश स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, पेरेंट्स सिविल सर्वेंट्स है, फिर भी उन्होंने रिजर्वेशन यूज किया. मीना कम्युनिटी जिसका 4.5% पॉपुलेशन है सिर्फ एसटी का, वो 40% से ज्यादा सीट्स लेके बैठी हुई है यूपीएससी में. तो किस डेटा को लेकर ये बैठे हुए हैं? और अपर कास्ट पे आपने कैसे पूरा ब्लेम डाल दिया कि वही पूरा का पूरा ऑप्रेस कर रहे हैं सबको?
ये आपके पास कहाँ से डेटा आया? अभी मैंने बताया ना, 2 ब्राह्मण आज सेप्टिक टैंक साफ करते हुए मरे हैं। नाम पता है उनके आपको? कोई और जाति का होता तो माथे पे लगा के लिख के बैठे होते यहाँ पे। नाम बताओ उन 2 ब्राह्मणों के। यू आर जनरलाइज, यू आर आप एक्सेप्शनल केसेस को कोट करके जनरलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। हम अपर कास्टों ने एट्रोसिटीज करी है मैडम। एसटी कम्युनिटी का डेटा इसको मानिए आप। बताइए। हाँ। एसटी कम्युनिटी का नहीं, मीना कम्युनिटी का कितना % पॉपुलेशन है एसटी में? आप मुझे बताइए। तो अगर पढ़ करके कोई आगे बढ़ जाए तो प्रॉब्लम है क्या? आप पहले जवाब दीजिए। आप पहले जवाब दीजिए। मीना नहीं, आप पहले ना कुछ कोई जवाब नहीं। आप पहले बताइए। नहीं, सवाल पूछ रहे सर, जवाब दे दीजिए ना। आप तो इतना डेटा और फैक्ट्स की बात करते हैं, आप जवाब दे दीजिए उनको। हाँ, क्या सवाल है आपका मैडम? अब सवाल ही नहीं सुना अभी तक, ऐसे बहस कर रहे थे आप, इसीलिए मैं आपके पास 1 बार आया, डॉक्टर रंगनाथन के पास 3 बार गया। क्योंकि आप सुन नहीं सकते मेरे लॉजिक को, आपका है नहीं आंसर। आप यहाँ बैटिंग करने के लिए बैठे हैं रिजर्वेशन के खिलाफ। प्रॉब्लम ये है, SC ST का दुख आपको दिखता नहीं है। उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है आपको दिखता नहीं। उनके साथ लोग शादी ब्याह नहीं करते। अरे मैंने कह दिया कि रिजर्वेशन इकोनॉमिक कंडीशन पे दीजिए ना, सब आपके साथ हैं। क्यों देंगे सर? उसका मान सम्मान जो सदियों से गया मान है, सम्मान उसको मंदिर में डॉक्टर उसने नहीं किया जाता था। डॉक्टर रंगनाथन मंदिर वाला क्वेश्चन नहीं, विवेक की उसकी अपनी कंट्री चाइना में कास्ट सिस्टम है। इंडिया की बात तो बाद में होगी, लेकिन इनको वर्ण और जाति में कोई डिफरेंस पता नहीं। तो इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी टू, जैसे रजनीकांत ने कहा था ना, विवेक इज बियॉन्ड साइंस, सो लेट मी नॉट डिस्कस हिम। मैंने क्या कहा है, अगर रिजर्वेशंस भी मिलता रहे जिनको मिल रहा है और मेरिट भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, दिस इज अ विन विन सिचुएशन। पार्लियामेंटेरियंस ने यही किया है। मैंने एग्जांपल दिया है भाई, उनको 543 सीट्स में रिजर्वेशंस नहीं करनी थी क्योंकि उनको अफेक्ट हो रहा था। उन्होंने सीट्स बढ़ाई और फिर रिजर्वेशन किया और 543 नॉन रिजर्व्ड रही। ऐसे ही पार्लियामेंटेरियंस हर सीट, डॉक्टर की, इंजीनियर की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, स्कूल की, जॉब की, हर सीट पे करने का दम है। अगर नहीं है देन यू आर अ कावर्ड एंड अ हिपोक्रेट। डॉक्टर नेहा। या आई थिंक मैं विवेक जी को पहले आंसर करती हूँ। मैं भी कायस्थ हूँ और मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ, तो अपना ये जो ज्ञान दे रहे हैं उनकी जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि कह रहे हैं कि किसी दलित को पुजारी नहीं बनाया जाता, SC ST OBC को पुजारी नहीं बनाया जाता, तो ये बिल्कुल भ्रम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साउथ में अधिकतर जो जितने भी मंदिर है वहां पे सारे पुजारी OBC होते हैं। कितने सारे, पटना में महावीर मंदिर है, वहां पे दलित पुजारी है। उड़ीसा में जो मंदिर है वहां पे जो ट्राइबल्स होते हैं वो वहां के पुजारी होते हैं। इनफैक्ट जो गांव में बहुत सारे मंदिर होते हैं वहां पे लोकल जो लोग होते हैं उसमें से SC ST OBC बहुत सारे पुजारी हैं। इवन आप राजस्थान में जाइएगा वहां पे कई मंदिर ऐसे हैं जहां पे कि मीना पुजारी हैं, विच आर ST। तो ये बिल्कुल भ्रम फैलाया गया है कि केवल ब्राह्मण पुजारी बनते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात ये कि कह रहे हैं कि उनके साथ बहुत ही अत्याचार हुआ। अभी मैं फिर आपको डेटा बताती हूँ। 81% ऑफ द SC ST एक्ट आर बीइंग फाइल्ड ऑन OBCs। इवन दलितों में भी हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बोला गया है 2024 के सब कैटेगराइजेशन में। वहां पे गवई जी भी थे, उन्होंने खुद बोला है कि SC ST के अंदर खुद हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो लोग 99% गांव में वो लोग खुद शादी ब्याह नहीं करते आपस में। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा है और आप सजा किसको दे रहे हैं? सबसे ज्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन का डेटा आप देखेंगे तो इवन मनोज यादव जी के यूपी पुलिस का डेटा है, वहां देखेंगे कि सबसे ज्यादा SC ST एक्ट के केसेस जो लग रहे हैं वो यादव और मुस्लिम पे लगे हैं। ये यूपी पुलिस का डेटा निकला है जनवरी टू अप्रैल 2026 का। तो मतलब इनका PDA जो है ना वो ही पूरा गोल है, क्योंकि इनके P और A जो है मिलके वो दलित पे अत्याचार कर रहे हैं। तो सिमिलरली विवेक जी का भी जो है मतलब प्रेजम्पशन है कि भैया सारा SC ST के अंदर उनके साथ बहुत अत्याचार होता है। ऐसा नहीं है। डेटा शोज दैट रिजर्व कैटेगरीज आर doing the caste discrimination the most and the general category is the least involved in the caste discrimination। तो आप किसको आप सजा दे रहे हैं और कौन है? ये you think he does not know? इनको पता है, लेकिन ये इनको एक वो नैरेटिव है, सो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं। मैंने when I said that if you have this quota reservation whatever it is in election results, कि उसमें सबसे पहले आउटरीच कौन करेगा? OBC कम्युनिटी के जितने लीडर्स हैं वो आ जाएंगे सड़क पे। वो बोलेंगे SC ST अगर 2000 में जीत रहा है, हमारा 3000 क्यों? हम भी 2000 में जीतेंगे। असली लड़ाई तो वहां शुरू हो जाएगी। उसमें विवेक श्रीवास्तव को पता है क्या होगा। बोलिए मनोज जी, बोलिए।
मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर मैं उंगली उठाऊं तो कम से कम मुझे 5-10 सेकंड का समय दे दिया करिए। मैं अनावश्यक बात करना डिबेट में पसंद नहीं करता। मैं पूरे पैनल से एक सवाल पूछता हूं, एक क्या दो ही हो गए उसमें। किस क्षत्रिय को घोड़ी पे चढ़ने से इस देश में रोका गया? एक। किस क्षत्रिय को मोच ऐंठ के रखने से रोका गया? दो। पूरे देश का कोई उदाहरण बता दो, डिबेट खत्म, आरक्षण खत्म। डॉक्टर नेहा, यू हैव अ चांस। आप बताते हो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता देश में, और अब मेरे पर बाबा की सरकार हमारे जैसे लोगों पे SC/ST लगाती है। अरे सर, सवाल का जवाब तो सुन लीजिए मनोज जी, अब ऐसे मत कीजिए। डॉक्टर नेहा, राजस्थान में जो है वो आप जाके देख लीजिएगा, मीना कम्युनिटी पीपल आर टेकिंग द पीपल फ्रॉम द दलित कैटेगरी है, तो मीना कैटेगरी ST क्या बता रहे हैं, उसके अंदर आप एक्यूज को तो ये जो आप इवन यादव जी खुद है ना, ओके, वी हैव अ बैड लाइन देयर। डॉक्टर रंगनाथन प्लीज। प्रणेश देखिए, मनोज यादव जी गाली गलौज देते हैं, इनसे बात करने का कोई भी नहीं, पता नहीं कहां तक पढ़े हैं, किधर से पढ़े हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं इनसे बात नहीं करना चाहता। मैं विवेक अपने दोस्त से बात करना चाहता हूं। विवेक, मुझे बस एक उत्तर दे दो, आपके CPIM के पॉलिट ब्यूरो में पहली बार दलित कौन चूज किया, कब, साल बताओ। 80 साल पुरानी पार्टी है। CPIM के पॉलिट ब्यूरो में पहली बार दलित कब इंडक्ट हुआ? बोलो। नहीं, देखिए, अब आप सुनिए, आंसर। अरे बाबा, वो पार्टी, अ पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट अ गवर्नमेंट। वो सरकार थोड़ी ना है, वो सरकारी कॉलेज है क्या? अरे तो वो कोई क्यों, नौकरी तो है क्या? नहीं तो एक मिनट, तो सरकार में रिजर्वेशन रखिए ना। नहीं, सरकार में रखिए, सरकार में रिजर्वेशन का रूल ले आइए। प्राइवेट सेक्टर सरकार थोड़ी है विवेक श्रीवास्तव। देखिए, आपने अपने आप को एक्सपोज कर लिया। वो सरकार थोड़ी है, पॉलिटिकल पार्टी सरकार नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर सरकार है, वहां पे रिजर्वेशन चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी, क्यों करते हैं आप अपने साथ ऐसा? आई एम नाउ लॉन्चिंग और जस्टिस फॉर विवेक कैंपेन। दिस इज नॉट राइट। ये आप एक्सपोज हो जाते हैं। कुछ हमारे लिए भी छोड़िए सर, वी शुड ऑल्सो गेट दी अपॉर्चुनिटी टू डू दीज थिंग्स। आप खुद ही बोल के फंस जाते हैं। क्या जरूरत थी आपको बोलने की? आप बोल देते कि नहीं मुझे नहीं पता, गिव मी सम टाइम। एक्सपोज हो गए आपकी वो सरकार थोड़ी है। पॉलिटिकल पार्टी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए बैट कर रही है, लेकिन when it comes to political party itself, that is an uncomfortable question. बोलिए। आरएसएस के अंदर जो टॉप शॉट्स हैं, क्या वो तो यही बोल देते ना सर, यही बोल देते। आप फंस गए ना, आप बोल के। पॉलिटिकल पार्टी सरकार थोड़ी नहीं है। आपको बोलना चाहिए था, वो नहीं बोल पाए आप। वी रन आउट ऑफ टाइम कंप्लीटली। आई होप दैट, सॉरी अनुराधा जी, किसी और दिन, आज समय खत्म हो गया। थैंक यू अश्विनी जी, डॉक्टर राजन, मनोज यादव जी, विवेक श्रीवास्तव, डॉक्टर रंगनाथन, अनुराधा जी, and Dr. Neha for joining us on this substantive issue. The idea is not to oppose a reservation mindlessly. It is only to ensure that merit also gets the space and the respect it deserves. That's all. The news are with Navita Kumar on the other side.